Hello and welcome to Left, Right and Centre. I'm Gargi Rawat. The big story we're tracking today, the shocking allegations of sexual harassment made by some of India's biggest names in wrestling against the Wrestling Federation chief and coaches. And now in its reply, the Federation, it seems, of India is trying to brazen out of these Me Too allegations by calling them motivated, malicious and unfounded. So let's now take you through the developments that have taken place this last week. On Wednesday, sexual harassment allegations were made by renowned wrestlers like Vinesh Phogat, Bajrang Punia and Sakshi Malik against the Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh, a member of parliament from the BJP from UP and the coaches of the national camp. Now, the wrestlers sat on protest at Delhi's Jantar Mantar and announced that they would continue till action was taken. It was a shocking scene for many. The Federation president vehemently denied the charges. He even asked for proof and he said if any of these charges are proven, he'll hang himself. Now, the centre gave the Federation 72 hours to answer the allegations, which ended today, those 72 hours. Then on Friday night, the wrestlers called off the protest after they held talks with Sports Minister Anurag Thakur. And then an oversight committee was formed to look into all these claims made, which includes several Olympians. And they've been given a period of a few weeks, but though they say they'll come up with their findings within 10 days. The Wrestling Federation of India gave its reply to the centre today and rejected all the allegations, including that of sexual harassment against its president, Brij Bhushan Sharan Singh, saying there is no scope for arbitrariness and mismanagement. And they accuse the wrestlers of having a hidden agenda, even questioning the timing of the protest. Well, to talk about this very shocking developments that have taken place in Indian wrestling and the kind of allegations and also the reaction of the government, today we're joined by Krishna Punia, Olympian and Padma Shri awardee, President, the Rajasthan State Sports Council. We also have with us Geetika Jhakar, India's first Arjun awardee woman wrestler, and Jagmati Sangwan, Indian volleyball player who was part of the Indian team that won the bronze at the Asian Volleyball Championships. Thank you so much all for joining us. And सबसे पहले Krishna Punia, I'd like to start with you. आपका क्या रिस्पॉन्स है जो रेसलिंग फेडरेशन ने जो जवाब दिया है in which they've said that these charges they've said it's motivated and mustn't be taken seriously, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कृष्णा जी, if you can just unmute, आप शायद म्यूट पर हैं. Yes. सॉरी. गार्गी जी, पहले दिन से मुझे यही संदेह था कि जो हमारे एथलीट जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो एलिगेशंस फेडरेशन चीफ पे लगाए थे और आज फेडरेशन कह रही है कि ये सब मोटिवेटेड था, तो जो कमेटी बनाने के बाद जो इस तरीके की फेडरेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, ये हमें एक तरीके से मुझे शंका है कि कमेटी ठीक से काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी और इन एथलीट्स को न्याय मिल पाएगा क्या, ये हमें अब डर बन गया. ये क्यों आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि इतने बड़े नेम्स हैं, जो कमेटी फॉर्म किया गया, इतने बड़े नेम्स हैं और जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ है उनको अभी साइड कर दिया है इन द सेंस कि कुछ समय तक, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहे, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये कमेटी ठीक से काम नहीं कर पाएगी? देखिए, मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि अब कुछ दिन पहले हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर एलिगेशंस लगे थे जो कि बीजेपी से ही आते हैं और 10 दिन के बाद वो खबर गायब हो चुकी और मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को कोई न्याय मिल पाया होगा. दूसरी तरफ जब 72 घंटे तक हमारे एथलीट सड़कों पे बैठे रहे और वो एथलीट जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है, इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, वो बैठे रहे और जो प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन के, वो कहते रहे कि मैं अपनी चेयर को नहीं छोड़ूंगा, मैं चुन के आया हुआ हूँ. तो ये सारे जो हड़तरबिता हमने इन 3 दिनों के अंदर देखी है, तो इसलिए ये महसूस होता है.
All right, Krishna Punya feels that perhaps justice will not be done. She doesn't feel that this panel that has been set up may be able to do its work properly. Gitika Jakhar, आपका क्या response है? What do you think, especially given this reply that the Wrestling Federation has given? जिस तरीके से Wrestling Federation ने जवाब दिया है that no scope of arbitrariness and mismanagement, can't allow whims of wrestlers, unreasonable requests by wrestlers acted in personal interest. And protest can't be taken seriously and कह रहे हैं कि ये पूरी एक conspiracy है. देखिए, हम अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि अभी तो यही चीजें हुई हैं कि एक कमेटी बनाई गई है और अभी तो उसने काम भी मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट किया होगा या कल जैसे रात को ये कमेटी बनी है, तो हम अभी इतना नेगेटिव नहीं सोच सकते उस चीज के बारे में. सेकेंड थिंग कि मेरा मानना है, जैसे कि मैं फर्स्ट डे से ये बात कह रही हूँ कि अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं, क्योंकि हम मीडिया ट्रायल करके और इन सब चीजों से हम किसी को पनिशमेंट तक नहीं पहुंचा सकते. उसके लिए एक हमारा एक जुडिशरी सिस्टम है और हर चीज जो है वो सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए. तो अगर हम जो है उनको कुछ गलत जो भी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है या जिसके भी साथ, जिस भी बच्ची के साथ ऐसे हुई है, तो ये बहुत शर्मनाक है. क्योंकि एज अ रेसलर और मैं भी पिछले 20-22 साल से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ रेसलिंग और मेरे लिए ये सबसे ज्यादा दर्दनाक है कि आज मेरी जो कुश्ती है, हमारी कुश्ती सड़क पर आ गई है और हमारे ऊपर भी, हम एक समाज में रहते हैं, हमारे ऊपर इतने क्वेश्चंस हैं, मतलब लोगों की नजरों में क्वेश्चंस हैं. तो वो चीज मेरे लिए बहुत दर्दनाक है और इसलिए मैं फर्स्ट डे से यही बात कहती आई हूं कि एफआईआर शुड बी लॉज्ड. जो भी जिसके भी साथ गलत हुआ है, मीडिया में लड़कियां ना आए, अपने साथ क्या हुआ है ना बताएं, हमें किसी को नहीं जानना है. बट दे शुड गो टू, मीडिया डजंट नीड टू से द नेम्स ऑफ द वुमेन और द गर्ल्स जिनके साथ ये हरासमेंट हुआ है. लेकिन ये जो कमिटी है, अब उनके सामने ऑब्वियसली द गर्ल्स विल हैव टू कम फॉरवर्ड. यही चैलेंज रहा है. अगर हम देखें जो रेसलिंग फेडरेशन चीफ ने कहा, हु आर दीज गर्ल्स, व्हाट इज द एलिगेशन, तो वो बहुत स्पेसिफिक्स में आ गए और वो चैलेंज कर पाए. और बिना विक्टिम के आप किसी को भी सजा नहीं दिला सकते. ये इस तरीके से जो भी धरना किया है, जैसे कि 3 दिन से ये चला है और उसके बाद अब मतलब उस धरने का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उन्होंने जो है, अगर विक्टिम सामने नहीं आएगा और अपनी कंप्लेंट नहीं देगा. इसके लिए मैं फर्स्ट डे से कहती आई हूं कि कंप्लेंट शुड बी लॉज्ड, एफआईआर शुड बी लॉज्ड और इसके ऊपर जो भी विनेश हैज सेड कि उसके पास कुछ उनके खिलाफ कुछ चीजें हैं, कुछ सबूत हैं, जो भी हैं उनको आप मीडिया में मत दो, लेकिन वो चीजें आपको उस कमेटी के सामने भी रखनी पड़ेंगी. और जहां पर भी आप एफआईआर, मुझे नहीं पता कि पिछले 2 दिन से किस लिए नहीं करवा रहे, जैसा कि मीडिया भी उनसे पूछ रही थी कि आप एफआईआर क्यों नहीं करा रहे, कि बदनामी होगी. मतलब इससे ज्यादा बदनामी हम नहीं सोच सकते. जो बदनामी अब तक रेसलिंग की हो चुकी है उससे ज्यादा बदनामी हो भी नहीं सकती. लेकिन आप समझ सकते कितना फ्रस्ट्रेशन रहा होगा कि इतने बड़े बड़े नाम, big names coming out Jantar Mantar and talking about these issues. It's not easy, and for them to have come out at the same time. Wrestling Federation in its letter has said कि there are mechanisms, there is a sexual harassment committee in the Wrestling Federation, and उसमें साक्षी मलिक भी है उसी कमेटी में, और वो आके बैठी थी, वो बैठी है जंतर मंतर में. So you can just tell that how useful this committee was if Sakshi Malik, who's a part of this committee, is coming to Jantar Mantar to protest. और एक चीज और ध्यान देने वाले कि आप पिछले 1 साल में भी आप देखें कि हमारी ये जो खिलाड़ी हैं, ये कोई छोटे नाम नहीं हैं और इनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं और हर मेडल पे पिछले 1 साल में देखें कितनी बार ये प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, खेल मंत्री से मिले. दे शुड हैव टोल्ड देम.
अगर Yes. जो भी कुछ अगर इस तरीके की चीजें थी तो, क्योंकि आप इन चीजों को नकार नहीं सकते, जब आप आज सड़कों पर हैं आप ये बता सकते थे, उसके बावजूद भी हो सकता है मे बी कि कोई भी रीजन हो सकता है नहीं बताया, failure रहा है तो within the आज wrestling federation also, and in this concerns all our sporting federations, because you know this is one such case that has come forward, very shocking. We're joined by Yogeshwar Dutt, Olympian and member of the IOA, Indian wrestler and Padma Shri awardee, who's a part of this panel that has been put in place. Yogeshwar, आपने अभी ज्वाइन किया, इससे पहले कृष्णा पुनिया जी बात कर रही थी, and she was saying that she is very doubtful whether your panel will be able to एक सवाल और है गार्गी जी मेरा। एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ इनसे, गेट टू द ट्रूथ ऑफ द मैटर, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो जवाब दिया है रेसलिंग फेडरेशन ने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि ये इट्स टू डू विद सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, मलाइन द मैनेजमेंट, कंस्पिरेसी बोली है, कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट इलेक्शन से पहले किए जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि दे ब्रेजनिंग इट आउट, वो मतलब वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये तो सब कंस्पिरेसी हो रही है। देखिए सभी को नमस्कार, और इसमें बचाव पक्ष भी और जिन्होंने आरोप लगाया है वो पक्ष भी, दोनों को अपनी बात कहनी है। आरोप लगाया पहलवानों ने, उन आरोप लगाया है फेडरेशन में, फेडरेशन ने अपना जवाब दिया है। बात ये है कि ये जो मुद्दा है, ये जो इतने 3 दिन पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसका बड़ा एक हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा एक नेगेटिव पूरी छवि गई है। बात चाहे फेडरेशन की हो, चाहे देश की हो, चाहे खिलाड़ियों की हो। 3 दिन हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे थे, और जो सबसे बड़ी जो बात थी यौन शोषण की, सेक्सुअली हरासमेंट की, ये बड़ी दुखद थी। और इसकी मैं अब लगातार मैं 3 दिन से एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि Right, we'll just see if we can reconnect with Yogeshwar, but let's go across to Jagmati Sangwan also with us. Jagmati, आपका क्या कहना है? ये जो पूरा जैसे अभी योगेश्वर कह रहे थे कि it's been 3 दिन से ये रेसलर्स बैठे थे जंतर मंतर में, some of the biggest names, और उनको इस तरह से वो सामने आए, इसके बारे में आपको क्या कहना है? और अब आपको क्या लग रहा है कि कमेटी जो है, पैनल, इस पूरे मामले की जांच करेगी अब, और जिस तरह से जवाब आया रेसलिंग फेडरेशन से? The utterances of Wrestling Federation of India are really unfortunate, and how this situation came here, that those who are raising their voice for the justice, they are being blamed and shamed today by the Wrestling Federation of India, which has been accused of sexual exploitation, money corruption, eating up the prize money of players, slapping the players on the mat itself, and they are today dictating, and they are coming out with a statement without any investigation. In one day, how can they decide on this? These allegations are very, very serious, and the committee constituted by the Indian Olympic Association, they should also be clear in their mind that in Haryana, at the larger level, we have gone in the villages, there is huge lot of anger within the people, how the government is trying to handle the whole issue. Geetika was trying to say that there is no FIR. In Haryana, the sportsman women has registered the FIR since 10-15 days. But what is going on? The SIT constituted by the state government here in Haryana, they are investigating the character of this girl. Why? Because the minister who is accused of sexual exploitation, he continues to be in the cabinet. He is president of Haryana Olympic Association. So he is influencing the whole process of investigation in his favor. And the same is happening at the national level. This man, the sports person, they demanded the removal of this person as president of WFI as a precondition. But the government seems helpless in front of him, and he has said that there is Shaheen Bagh going on against him.
on this statement itself, he should be taken to the task. What is this Shaheen Bagh? These are the girls who have bring laurels to the country, and they are complaining about what has been happening to them here in the Wrestling Federation of India, and they are exercising their due right, and the government That's right. should We take can't be everything little. seriously. Absolutely. Yes, we they can't belittle this protest. It takes a lot of courage to come out and speak in this manner. We have Yogeshwar back with जगमती us. जी, जगमती जी, FIR जो है, FIR is the first step. किसी को भी FIR पनिशमेंट हरियाणा देने में And you're का। talking ये about that जो मीडिया Haryana ट्रायल case in है, which मीडिया ट्रायल Minister has करके spoken out आप against किसी the को minister. पनिशमेंट नहीं दे All right, सकते। just a minute. Just a minute. Let me FIR get हरियाणा में किसी की गई है। मेरी बात सुनिए, हरियाणा में हरियाणा क्या हो रहा है? All right, I'm going to just lower your mic. I'm sorry, but I'm going to just lower your mic because I want to really get Yogeshwar on this. Yogeshwar, that first and foremost, what do you think of this letter that the Wrestling Federation has given in reply? ये जो जवाब दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से कहा ये पूरा कंस्पिरेसी है, ये मोटिवेटेड है, क्वेश्चन किया है रेसलर्स को, जिस तरह से ये लेटर लिखा गया है, it's quite clear that they're not taking these allegations seriously at all. देखिए, उन्होंने अपना जवाब दिया है। ये फाइनल ये की नहीं है कि जो जवाब उन्होंने दिया वो सब कुछ तथ्य है। उन्होंने अपना, फेडरेशन का अपना जवाब है वो, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जो कल चार लोगों की कमेटी बनाई है मंत्री जी ने, और उससे अलग आईओए की जो कमेटी बनी है, जांच वो करेगी। और आप या हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो भी फेडरेशन लिख के दिया है कि यही सत्य है, जितनी भी जो भी इन्होंने लिखा है। अभी इसकी जांच पड़ताल होगी, खिलाड़ियों से भी पूछताछ होगी, खेल मंत्रालय अलग तरीके से जांच करवाएगा, आईओए है जो वो अपने तरीके से उसकी जांच होगी, क्योंकि इसमें काफी चीजें पूरी दुनिया में ये मामला गया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी संज्ञान में है कि उसकी भी एक बड़ी बारीकी से है, क्योंकि सभी खेल जितनी भी बोर्ड संस्थाएं हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर आती हैं, और पूरी खेल की, पूरे दुनिया की खेलों की छवि से खराब होती है। तो इसकी में रिपोर्ट जाएगी, जो वो रिपोर्ट जाएगी कि क्या चीजें चली है, और ये तभी होगा जब खिलाड़ियों, ये जो खिलाड़ी थे हमारे, पहलवान थे, इस देश की करीम थे, और सभी को, पूरे देश को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है, तो उनसे पूछताछ, मतलब ये पूछताछ वैसे नहीं, उनसे पूछा जाएगा भी कहाँ पे क्या क्या बातें हैं। वो जो चीज ओपनली करने की नहीं है वो ओपनली नहीं हो सकती, बातें जो बताने की है वही है। पर यह है कि अगर हमें किसी को सजा दिलवानी है उसके लिए तो एफआईआर करनी पड़ती है। ये करना, पुलिस रिपोर्ट करना अलग चीज है, पर एक जो जांच है कि सरकार तक जो पहुंचेगी, वो गृह मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री जी तक हो या इसके खेल मंत्रालय तक हो, वो रिपोर्ट तो जाएगी, क्योंकि जो जांच कमेटी बैठाई है अपना काम तो आईओआई भी करेगा, और जो मंत्री जी ने जो कमेटी बनाई वो अपना काम करेगी। और कितना जल्दी आपको लग रहा है आपका पैनल काम करेगा? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज एवरीथिंग, यू बीन गिवन अ फ्यू वीक्स, बट जितना जल्दी ये हो पाए, दैट विल बी जस्टिस फॉर ऑल। अदरवाइज जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मीडिया का अटेंशन थोड़ा इस तरफ चला जाता है, फिर वो रफा दफा किया जाता है मामले को। नहीं, देखिए, कोई जो ये रफा दफा करने वाली चीजें नहीं है, और सबकी अपनी वाली जिम्मेवारी होती है। वो इंडियन ओलंपिक संघ बड़ा अभी नई पूरी बॉडी बनी है, खिलाड़ी आए हैं, और पूरे देश को उम्मीद होती है कि भाई खेलों में खिलाड़ी हैं तो कुछ ज्यादा अच्छा करेंगे, हट के काम करेंगे। और ये पहला ही जो ये मामला है बड़ा संगीन और दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला है। तो इसकी कल भी 2 घंटे मीटिंग चली थी, जो कमेटी बनी, और हमारा तो ये मानना है कि जितनी जल्दी हो, अब 5 दिन या 6 दिन जल्दी से जल्दी सारी चीजें हों, और एक जो बिल्कुल फेयर है, जो रियल बातें हैं, जो कमेटी है वो दे, चाहे वो किसी भी तरीके से दे। जरूरी नहीं है कि इन्हीं खिलाड़ियों से पीछे और भी जो हमारे खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, जो भी जूनियर सीनियर, ये नहीं कि जो पहलवान। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था, किसने बोला है, कोई उनको कोई स्पेसिफिक नाम चाहिए था, कोई स्पेसिफिक जब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उसके बारे में पूछ रहे थे कब हुआ था। लेकिन अभी मैं आपके सामने कह रही हूँ कि मीडिया, आई डोंट थिंक वी नीड टू गेट इनटू दो स्पेसिफिक नेम्स, बट आप एज अ पैनल, एज यूर इन्वेस्टिगेटिंग, ऑब्वियसली आप बात करेंगे, बट प्रिवेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हम बात करेंगे, हम अपनी जो बातें हैं, जो भी पहलवानों की बातें वो रख सकते हैं, पर सजा दिलवाना, सजा हम और आप नहीं दिलवा सकते, चाहे हम आपको प्रूफ नहीं, सजा की बात नहीं हो रही, बट जो सामने आए हैं रेसलर्स हमारे, जो रेसलर आए हैं वो चीजें वो बंद करने में बात होंगी। वो ये बातें भी नहीं, कोई कुछ खिलाड़ी बताए या कोई और खिलाड़ी, इन खिलाड़ी से अलग भी कोई बताए ऐसी गहरी चीज, वो ओपन नहीं कर सकते,
क्योंकि सब हमारी भी बहन बेटियां, और ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये ऐसे किसी भी खेल के, वो हमारे भाई बहन, हमारी बेटियां हैं। हमें पता है कि कितनी मुश्किल से एक हमें समाज का और लोगों का सामना करते हैं। तो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, पर जो भी सच्चाई होगी वो हम कम से कम गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पीएमओ तक और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उस तक तो वो सच्चाई तो पहुंचा सकते हैं। पर अगर सजा ही की बात है, हमें सजा दिलानी है, तो वो वहां तो हमें पुलिस रिपोर्ट या उस वहां तक जाना पड़ेगा। और रेसलिंग फेडरेशन ने कहा दिस इज पॉलिटिक्स की, ये मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है। उन्होंने कहा जा रहा है कि इट्स टू डू विद यूपी पॉलिटिक्स, इट्स टू डू विद हरियाणा यूपी पॉलिटिक्स। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं इस वजह से इस सब मामला को सामने लाया जा रहा है? देखिए फेडरेशन जिस पे भी अगर आप या मेरे पे या मैं आपको आप पे आरोप ऐसे लगाऊंगा एकदम से, तो आप अलग अलग एंगल से देखोगे, मैं भी अलग एंगल से देखो कि भाई मेरे को इसके अंदर इस ऐसे फंसवाने की कोई साजिश है, मेरे को इस दाड़ में, जैसे भी वो है, सबका अपना काम है। मैंने ये बताया ना कि भाई आरोपी पे आरोप लगाए गए हैं, वो अपना डिफेंस में कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि भाई जो दिखते हैं उनको ही है, ये जो हरासमेंट हुई है या बात स्पोर्ट्समैनशिप की हो या कैंप की हो, सबके अपने पक्ष होते हैं इसमें और ये दोनों पक्षों की सुन के ये सारी चीजें होंगी। और हमारा एक ही चीज है कि जो भी चीज हो सच हो, चाहे वो बंद कमरे में हो चाहे वो ओपन हो, जहां तक जब ये लेटर फाइनल बन के हमारी जो ये पूरी चीजें जहाँ से तो असली जाए, नकली ना जाए। उनका कहना था उनको कुछ डाउट्स हैं, फियर्स हैं कि जिस तरह से लड़कियां सामने आए, क्या ये पूरा मामला ठीक से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? कृष्णा पुनिया, आप जरा बताइए। विनेश ने एक बात कही थी कि 2021 अक्टूबर में वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली थी अपनी फैमिली के साथ, और इन सब मुद्दों पे भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। तब लगभग 1.25 साल हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री तक जब ये बात कही थी तो इसमें पीछे अपोजिशन नहीं था, ये विनेश ने स्वीकारा है। और जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आप तो हमारी बेटी हो, और उस बेटी ने एक बात कही कि इस देश में बेटी जन्म ही नहीं लेनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा था उसको तार तार करने का काम किया है। एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है बीजेपी का। इसमें माननीय हमारे जो योगेश्वर भाई है वो क्या कहना चाहते हैं, तब इसलिए हमें शंका होती है कि क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को 1.25 साल पहले देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इस पे किसी भी पार्टी की तरफ से ना बोले, इसमें एक देश की बेटियों के लिए बोले। हाँ, क्योंकि ये पार्टी की तरफ बोलना है, लेकिन एक नेता की तरफ बोलना। योगेश्वर आपको मालूम है एक बार नहीं मैं बहन जी आप मेरी बात सुनिए। अरे बहन जी आप मेरी बात सुनिए। जनता चुन गया कुछ भी, मैंने स्टार्टिंग से बात बोलता हूँ कि वो दोषी है तो उसको फांसी होनी चाहिए। बहन बेटी सबकी एक है, तो किसी पार्टी का हो। और बिल्कुल सही है। अब ऐसे आती है कि ये है वो, तो हमें जिसके लिए कृष्णा पुनिया जी, I know you are with the Congress, but right now we want to get into the political party. प्रधानमंत्री जी को हम political party में ही जाना चाह रहे हैं, because this is about you, the athletes, the wrestlers and the women. ये रिकॉर्डिंग आपकी राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, आपके मुख्यमंत्री तक चली जाएगी। कांग्रेस आपकी बातें कर रही है, ये बात किसने आपकी बातें यहाँ पे ना तो कांग्रेस है, माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है। इन बातों पे एक मेरी बात सुनिए, यहाँ तो ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है। आपकी जो बातें हैं ये आपके राहुल गांधी ने जो आपके पार्टी सुन चुकी है। अब इसको पार्टी आप एक देश के लिए, आप मेरे को पहले बताइए, आप देश की बेटी बन के बात करिए कांग्रेस की तरफ से, तो बेटी हो तो बेटी हो तो। कृष्णा पुनिया जी, let him answer please. We don't, again I'm saying we don't want to get into the politics. We're trying to understand what has failed these wrestlers. मैंने पहले बोला था कि कोई बेटियों को नहीं आना चाहिए था। अगर 1.25 साल पहले इन बातों को अवगत करा दिया गया था तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं थी। तो आप एक तरीके से इन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट, ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ। पुनिया जी, जस्ट अ मोमेंट, लेट योगेश्वर आंसर, जवाब तो देने दीजिए। यस योगेश्वर, आई एम सॉरी टू पुल डाउन योर माइक राइट नाउ, लेट योगेश्वर रिप्लाई। यस, गो अहेड। बहन जी, में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो पार्टियों के कैंडिडेट बन के यहाँ पे आते हैं, खिलाड़ियों की जगह ये अपना चेहरा समझती, हमने आपके ऐसे बोला, हमने
आज प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री की या कांग्रेस की बीजेपी की बात नहीं है। देश के हमारे खिलाड़ी 3 दिन तक ठंड में वहां पे ठिठ रहे हैं। क्यों? इसमें वो पार्टियों को मत लीजिए, बस खेल की बात, खिलाड़ी की बात करिए। हम बोलते हैं कि चाहिए, फिर आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बीच में let me get in others as well. Jagrati, Sangwan, what do you have to say? मेरे को पता होता है कि भाई यहाँ से कांग्रेस की तरफ से ये मतलब ये देश की नहीं है, मतलब अपनी पार्टी की बात करेंगे, ये दिखाएंगे कि राहुल गांधी होगी भाई मैं ऐसे बोला, मैंने प्रधानमंत्री ऐसे घेरा। ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग डालते हैं सोशल मीडिया पर। Yogeshwar ji, just a minute. Let Jagmati Sangwan speak. Last word. I'm running out of time. Ji, go ahead. Yes, I want to say that the president of WFI, he has been sidelined for 4 weeks, and there is no 2-3 members committee constituted yet. Then who has issued this statement, and under which right they have issued this statement? This is just to shame and blame the bold girls who have come out to speak for the justice, to speak for the fair investigation, and this blaming and shaming, this only discourages women to speak out against the sexual harassment. Absolutely, and therefore there's so much riding on this panel which Yogeshwar Dutt is a part of, and we really hope the panel will investigate this matter thoroughly and come out with its report as soon as possible, because it's been quite a startling last couple of days to see such big names in Indian wrestling world coming out and talking about facing sexual harassment and talking about the kind of anguish that a lot of the players have had to go through. Thank you all for joining us on the program today and speaking to us, and we will continue to speak with you. With that, we're completely out of time. Thank you all for watching at home. Goodbye.